Hello. Good morning, sir. Good morning, everyone. Okay, so start your class. In previous lecture, we are solving one problem which is on 3-hinge parabolic arch. Okay, so the question was a 3-hinge parabolic arch which is not in same level this was the question. Hello. Yes, sir. A से C तक का डिस्टेंस है सर L1 L1 और हाइट है सर 3 मीटर. 3 meter height. Okay, and distance L2. C2 है L2 और ओवरऑल हाइट है सर 6.75 मीटर. और ओवरऑल जो पूरा लेंथ है हम लोग का A to B सर वो 22.5 मीटर है. Okay, L is 22.5 meter. यस सर. तो क्या क्या हम लोगों ने निकाल लिया था, डिस्टेंस निकाल लिया था. L1 is सर L1 is 9 मीटर. 9 meter and L2 13.5 मीटर. 13.5 meter. वर्टिकल रिएक्शन आएगा सर 189 किलो न्यूटन. VA is equal to 189. किलो न्यूटन. VV is equal to 81 किलो न्यूटन. and most important is H, horizontal thrust, 162 यस सर 162 किलो kilonewton. न्यूटन. The purpose was to find the maximum positive and negative bending moment. So for positive or negative, what we will do? We will do first generate bending moment equation and differentiate it and equate to 0. Okay. In this question, the maximum bending moment where will occur? Maximum bending moment. L1 by 2 पे वहां पे करेगा सर उसके आसपास करेगा. Yes, in maximum bending moment in this case will occur under the load. Okay, under the load. So the load is applied only in the part of AC, in AC part only. Okay, so the maximum bending moment will occur in AC part, and in CV part there will be negative bending moment, maximum negative moment bending moment. When this will go down, the portion of CV will uplift. Okay, so the condition is
for maximum positive moment or maximum positive bending moment or we can say maximum positive bending moment will occur at a section in AC पार्ट में ही किसी सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। हेलो हेलो यस सर। आवाज आ रहा है? सर आवाज आ यस रहा है? सर। यस सर। एसी पार्ट में ही किसी सेक्शन पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, तो एक हम सेक्शन ले लेते हैं इस 1 मिनट, एक हम सेक्शन ले लेते हैं एसी पार्ट में। एक सेक्शन ले लिए जिसका डिस्टेंस है x एंड हाइट है y। ओके, डिस्टेंस है x फ्रॉम ए पॉइंट एंड हाइट है y। तो इसका हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू, एनीवन? हेलो हेलो to 4h by L square 4h डिवाइड बाई l स्क्वायर इंटू x इंटू l माइनस x into L minus x ओके। bracket closed. Put here the value of h and only h and value of l. So 4 into value of h is, suppose this is h1. Okay, this is h1, height h1 is equal to 3 meter. So 3 divided by l is, small l is, l1 is 9 meter. So 9 square into x into l minus x. Okay, हेलो Yes, sir. इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? y is equal to 12 divided by 81 x, यहाँ पर 9 रख दो, 9 है ये l। 1 मिनट l oh 1 मिनट। हेलो हेलो यस सर। ये टोटल कंसीडर किया जाएगा लेंथ। ठीक है, ये यहाँ तक का लेंथ कंसीडर किया जाएगा क्योंकि L1 हमारा निकला है 9 मीटर। ठीक है, ये 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक हुआ। सो L जो पूछ रहा है, तो L तो ये टोटल है, मीन्स ये अभी L ये हम पर जो ये अलग अलग पार्ट है उसको कंसीडर ना करके अभी मैं इसी पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जब मैं इस सेक्शन को ले रहा हूँ तो इस पोर्शन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इस पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये 9 मीटर है और ये इधर 9 मीटर, तो टोटल 18 मीटर हो गया। तो L यहाँ पे जो पुट करेंगे हम AC पार्ट के लिए पुट करेंगे 18 मीटर। और देन जब हमारा BC पार्ट का आएगा तो BC सॉरी जो CB पार्ट का आ जाएगा तो CB पार्ट के लिए हम ये टोटल कंसीडर करेंगे।
ठीक है, हेलो हेलो। यस सर। सीबी पार्ट के लिए जब आएगा तो मैं कितना इसका डबल कर दूंगा, इसका डबल। और ये एसी पार्ट के लिए इसका डबल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, 18 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 18। ओके, दिस इज 18, 18। So 1 minute, the value is 18 square into 18 minus x. Okay, this is the value of y for AC part. Now write the equation, write the equation for bending moment. So bending moment equation in AC part is hello, in AC part, AC part के लिए क्या हो जाएगा bending moment? हेलो, Sir, vertical distance into x. हाँ, वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन कितना है H into 89 into what horizontal reaction is, yeah, perpendicular reaction is x. Okay, x minus vertical load is 15, sorry, 30 into x by 2, 30 into x by 2 minus hello, y, sir. H into y. Horizontal H. thrust into y height. yes, h into y। तो यहाँ से फाइनल इक्वेशन कितना आएगा, सॉल्व करो, h का वैल्यू रखो एंड y का वैल्यू रखो, कितना आएगा? Yes, sir. फाइनल इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ 81x minus 9x square. Okay, mx is equal to 81x minus 9x square. This is our bending moment in AC part. And for maximum minimum, for maximum positive, bending moment, what we will do, we will differentiate this bending moment equation with respect to x and equate to 0. So the equation is 81x minus 9x square. So from here we will get the value of x. So differentiate it, 81 minus what is 9x square, so 18x, 2 into 9 into x is equal to 0. So 81 minus 18x is equal to 0. So x is equal to 81 divided by 18. Okay, so the value is 4.5 meter. Put this value in equation 1.
put this value in equation 1, so we will get maximum bending moment, maximum positive bending moment. 81 into the value of x is 4.5 minus 9 into value of x square 4.5 x square. So the final value, यहाँ पे कितने परसेंट है, कुछ बोल नहीं रहे हो? हेलो, यस सर। बताओ वैल्यू बताओ, फाइनल कितना है? सोनू कुमार, सभी को मालूम होना चाहिए, मैं एब्सेंट भी कर देता हूँ, ठीक है? जो भी अटेंडेंस बनाता है मैं एब्सेंट कर देता हूँ, फर्जी वाला अटेंडेंस। तुम लोग चेक कर सकते हो अपना LMS पे। 182.25। 1 मिनट, सोनू कुमार, यस सर। सोनू कुमार, सोनू, इसको कोई जगाओ तो फोन करके। अमृत, अमृत, यस सर, कर रहे हैं हाँ इसको जगाओ तो, इसको जगाओ, अगर क्लास में है तो ठीक है, वरना इसको बोलो कि लीव कर जाए। सुमित्रा कुमारी, हेलो सुमित्रा कुमारी, हेलो, चलो ठीक है, ओके, आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा, ठीक है। सोनू कुमार लेफ्ट कर गया ना? अमृत, हेलो, अमृत तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सर उसको कॉल लगा रहे हैं, रुकिए, कॉल लगा होगा इसलिए एग्जिट हो गया होगा। चलो ठीक है, उसको बोलो। कॉल पे फिर आपको आवाज नहीं आएगा, काट दिए हम, कर रहे हैं। ठीक है। सो द फाइनल वैल्यू इज क्या? धारनी क्या बोल रही थी फाइनल वैल्यू? दीपा मेहता 182.25 आया सर। 182.25। यस सर, 182.25। किसमें, केजी ग्राम में किसमें आया है? सर किलो न्यूटन ना। किलो न्यूटन में आया है ना? किलोमीटर मीटर सर। किलो न्यूटन मीटर में आता है, ठीक है। जो बेंडिंग मोमेंट यस सर। किलो न्यूटन मीटर में होता है, और जो इंटेंसिटी ऑफ लोड होता है वो किलो न्यूटन में होता है या फिर न्यूटन में होता है, ठीक है। ये पोर्शन हो गया। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? नाउ वी विल फाइंड मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट। ओके, फॉर मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट किस पार्ट में होगा हमारा? मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मेरा सीबी पार्ट में होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोड अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई भी लोड अप्लाई नहीं हो रहा है, तो एसी पार्ट में जब मैक्सिमम होगा तो ये क्या करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करेगा, मीन्स नेगेटिव, ठीक है। जब नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे हम? एक इक्वेशन फिर लेंगे और सीबी पार्ट में एक सेक्शन लेंगे, ठीक है। टेक ए सेक्शन इन सीबी पार्ट। Suppose this is a XX section. Distance of this section is X from B part, and the height is Y. Suppose this is Y1, this is Y2, this is X1 and X2. The height for this arch is H2. Okay, so right here H1, H1, okay, H1, H1, ठीक है। सोनू बोल रहा है सर उसको आवाज नहीं आ रहा है कुछ भी। क्या बोल रहा है? उसको कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है, बोल रहा है। ठीक है, उसको बोलो लेफ्ट कर जाए, वो ज्वाइन मत करे, वो क्लास मत करा किया करे, ठीक है।
चलो ये हो गया, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अभी y निकालेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए y कितना हो जाएगा बोलो, y2 कितना हो जाएगा? इन सीबी पार्ट y कितना हो जाएगा? रंजन कुमार बोलो। सर वाई हो जाएगा 6। सर वाई तो निकालना पड़ेगा, हाँ, फॉर्मूला जो है 4h। एक्सप्रेशन बताओ, एक्सप्रेशन बताओ पूरा। सर 4h हम्म, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर वो तो मुझे मालूम है। मैं x इंटू एल माइनस एक्स। एल वैल्यू क्या रखोगे, एल वैल्यू क्या रखोगे बोलो। सर 4 इंटू 4 इंटू 6.75 6.75 एल में सर हो जाएगा 27 का स्क्वायर। 27, यस वेरी गुड, वही मैं सुनना चाह रहा था, ठीक है। क्योंकि मैंने यह क्या बोला था, जब इस पार्ट के लिए लेंगे तो सर अभी डबल कर देंगे, ठीक है। अब और अगर सीबी पार्ट के लिए yes, ले रहे हैं तो मैं L2 को डबल कर दूंगा, क्योंकि ये जाएगा यहाँ तक जाएगा, जो भी ये आर्च बनेगा L2 के लिए यहाँ तक बनेगा, तो ये डिस्टेंस टोटल हो जाएगा, ठीक है। सो 27 स्क्वायर इंटू एक्स इंटू इंटू 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स। ओके, मैं इधर लिखता हूँ अच्छे से। y2 इज इक्वल टू 4 इंटू h मेरा कितना है डिस्टेंस, 6.75, ओके। 6.75 डिवाइड बाई 27 स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 27 माइनस एक्स, ओके। सो फाइनल y2 कितना आया है बताओगे? कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 मिनट। दीपा बताओ। सर हम भी कैलकुलेट ही कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ। सर 1/27 हाँ, x इंटू 27 माइनस एक्स। 1/27 x इंटू 27 माइनस, 27 माइनस। ये तो गलत है, कोई दूसरा बताओ। सर आप 27 लिखे वो गलत होगा, कि मतलब 27 माइनस एक्स नहीं होगा सर, वहाँ कितना होगा होगा? 13.5 माइनस एक्स 13 पॉइंट एक्स। ये होगा। यस सर। अच्छा, मैंने यहाँ अभी क्या बोला, जब मैं यहाँ बता रहा हूँ तब क्या कर रही थी तुम, शायद ध्यान नहीं दी हो। When we are discussing वाई का वैल्यू ठीक है सर। when we are discussing about in AC part, I was telling that for this arch means we consider whole part of this section, means L ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो L यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा, 9 मीटर है, तो उसका डबल हो जाएगा 18। एंड मैं जब सीबी पार्ट के लिए कंसीडर कर रहा हूँ, तो सीबी पार्ट के लिए जो मेरा ये आर्च बनेगा वो यहाँ तक बनेगा, ठीक है। एक सपोज मैंने इमेजिनरी यहाँ पे बना दिया, तो ये L2 कितना था, L2 मेरा 13.5 था सुशीला। सर हाँ समझ में आ गया। ठीक है, L2 इतना Yes, sir. 13, ओके ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल हो जाएगा 27 यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है 27। तो ये तुम्हारा थोड़ा सा रॉन्ग है। सर ये आंसर सही है वाई का, मेरा भी इतना ही है। सही है सर, हैं? इतना ही आ रहा। चलो ठीक इतना है, ही ये आ रहा है आंसर सर। सही है, ठीक है, इतना ही आ रहा है, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, मैं करूंगा कि जो मैंने सेक्शन लिया है एक्स एक्स, इस सेक्शन पे मैं क्या करूंगा, अभी बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। सपोज इस सेक्शन पे मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ इक्वेशन, तो इसका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, mx कितना हो जाएगा, v सर वी इंटू एक्स x माइनस
minus h into y. h into y. Okay. The value of VB is 81. 81 into x minus the value of h is what? 162. 162. 162 into value of y is 1 divided by 27 x into 27 minus x. So final value of mx is कितना होगा निकालो. Tell me final value. Hello. Yes, 81x minus कितना? 81x x minus 2x minus 6x square. अच्छा ठीक है. सर मैं माइनस फाइनल 6x वैल्यू स्क्वायर माइनस 81x. हाँ मैं फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ 6x स्क्वायर माइनस 81x. ओके, ये तुम्हारा फाइनल है. अभी फॉर मैक्सिमम मिनिमम हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है. सो फॉर मैक्सिमम मिनिमम, पॉजिटिव नेगेटिव, for maximum negative bending moment, differentiate bending moment with respect to x and equal to 0. So from here 6x square means 12x minus 81. 12x minus 81 equal to 0. So the value of x is 81 divided by 12. So x is कितना है? x 6.75. 6.75 meter. Okay, 6.75 meter, and put this value in bending moment equation, means in equation 2. So mx equal to 6 into 6.75 square minus 81 into 6.75. So the final value is mx is कितना है? minus 273.375. minus 273.37 375 kilonewton millimeter. meter. Okay, this is the maximum negative bending moment in part CV. तो मेरा मोटो था मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालने का. ठीक है, तो ये मेरा मैक्सिमम. अगर मैंने यहाँ नेगेटिव बोल दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ अगर नेगेटिव बोल दिया है तो यहाँ पर नेगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है फॉर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. सो नेगेटिव मैंने बोल ही दिया है तो यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है, आ गया सभी को समझ में? हेलो. यस सर। Yes, sir. ओके, समझ में आ गया है. तो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक बढ़ता हूँ 2 हिंज आर्च पे. ठीक है, 2 हिंज आर्च पे बढ़ता हूँ. उससे पहले तुम लोग एक क्वेश्चन लिख लो अपना होमवर्क के लिए, घर पे प्रैक्टिस करना थोड़ा सा.
एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, फिगर बना लो, क्वेश्चन उसी में हो जाएगा टोटल। ठीक है, फिगर बना लो, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंट है। क्वेश्चन है पैराबोलिक आर्च है, सेम लेवल पे नहीं है। ठीक है, इसका डिस्टेंस जो है हाइट 3 इंच आर्च है ये, subjected to UDL on half portion, or we can say in AC part, and in BC part no load. The length of first is, suppose L1 is 12 meter, L2 is 18 meter. The height of first means AC part is H1 is 4 meter, and height of BC is part is means H2 is 9 meter. Okay, 9 meter. And the intensity of this UDL is 30 kilonewton per meter. Question is to determine horizontal thrust and the vertical reaction at the support. Okay. Also find maximum bending moment for the arch. Okay, this is your question for homework. इसको एज ए असाइनमेंट समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं कभी भी मांग सकता हूं। ठीक है, हेलो। यस सर। Yes, sir. इसको असाइनमेंट समझना, और कभी भी मैं सबमिट करा सकता हूँ इसको। ठीक है, अपना फ्रेंड लोग से भी बोल देना, जो महान भाव लोग क्लास में नहीं आते हैं उनको भी बोल देना। ये टीचर असेसमेंट के लिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा टफ होगा तुम लोग का इस बार का जो इंटरनल एग्जाम होगा, थोड़ा टफ होगा, क्योंकि वहाँ गूगल लेंस हो या फिर गूगल क्रोम वगैरह काम नहीं आएगी, या गूगल बाबा काम नहीं आएंगे। तो तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी से। जो भी नहीं है यहाँ पर उनको भी बोल देना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिसाइड हुआ है कि जो 30 में 30 आ जा रहा है वो नहीं आना है। ओके, सो बढ़ते हैं। अच्छा, मीटिंग तो एंड होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं मीटिंग। सेकंड मीटिंग में हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारा 2 इंचार्ज। तुम लोग मीटिंग को ज्वाइन कर लेना अभी तुरंत।